Okay, let us now discuss 18th question from the practice sheet. 18th question says, by using division algorithm, find the largest number which when divides 969 and 2059, the remainders obtained are 9 and 11 respectively. So what the question wants to say? It says that by using the division algorithm, I need to find the largest number which divides 969 and 2059, leaving the remainders 9 and 11. So what I can see is I need to determine a number which when divides these two numbers in such a way that there are two remainders. Okay, in both the cases there will be remainder. अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें हमने HCF निकाला, HCF कैलकुलेट करा और हमने डिवाइड करके बताया कि HCF वह नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. ओके, HCF वह सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. लेकिन यहाँ पर हमें रिमाइंडर दिखाई दे रहा है कि 969 को डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर बचना चाहिए और 2059 को डिवाइड करने पे 11 रिमाइंडर बचना चाहिए. तो इस चीज को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, इससे कैसे इसका एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करें जो इस तरह का एक रिजल्ट दे रहा हो. सो देखिए, इसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल दैट इफ आई डिवाइड 7 by 3, अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं, what I will get, 3 2s are 6 minus 1, so I will say that this 1 is a remainder. Now since 1 is a non-zero remainder, I will say that 7 is not divisible by 3. I will simply say that 7 is a number which is not divisible by 3. It is not at all divisible because remainder is a non-zero value. Okay? Agar 7 is a non-divisible number, so just think about if I subtract this 7 from this 1 from this 7. अगर मैं इस 7 में से इस 1 को subtract कर देता हूं, so what I will get? 7 minus 1, I will get 6. Okay? So 7 minus 1 matlab dividend minus remainder will give you a 6. Now what is 6? If I divide 6 by 3, so 3 2s are 6 and this is 0. So what I will say? I will say that 6 is divisible by 3. Okay? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, आपने ये चीज सीखी है. 7 एक नॉन डिविजिबल नंबर है, मैंने उसको 3 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 1. फिर मैंने इस रिमाइंडर को इस 7 में से, जो कि एक डिविडेंड है, इस डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. जैसे ही मैंने 1 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करा, मुझे 6 मिला. और अगर मैंने 6 को 3 से डिवाइड करा, आई फाउंड दैट 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3. सो व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस? वी कैन से दैट इफ आई सब्ट्रैक्ट, if we subtract the remainder, if we subtract the remainder from dividend, we get a number which is completely divisible by divisor. So try to understand the logic. What I mean to say is that since this dividend is not divisible by this divisor, so what I did is I subtracted the remainder from this dividend, and what I got a number which is divisible by this divisor. Okay? 3 में से this 7 में से 1 को subtract करा and I got 6. so 6 क्या है? एक divisible number है. So ultimately conclusion क्या निकलता है? Conclusion निकलता है कि अगर एक non divisible number है for any divisor, कोई भी एक नंबर के लिए कोई एक नॉन डिविजिबल नंबर है. ओके, दिस इज अ डिविडेंड.
अगर कोई नंबर नॉन डिविजिबल है, सो इफ आई सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम दिस नॉन डिविजिबल नंबर, व्हाट आई विल गेट इज अ डिविजिबल नंबर. ओके, ये एक जनरल, एक बेसिक कंसेप्ट है डिवीजन का. मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, इफ आई गेट अ नॉन जीरो रिमाइंडर, आई कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द डिविडेंड एंड व्हाट आई विल गेट इज अ डिविजिबल नंबर. ओके, इफ यू सब्ट्रैक्ट, इफ यू डिवाइड 11 by 4, so let us divide it. 4 2s are 8, it will give you 3. So 3 is what? It's the remainder. Now I can say, since 3 is the remainder, 11 is not divisible by 4. So if 11 is not divisible by 4, what I did is I subtracted this 3 from this 11. So 11 minus 3 will give you 8. So what I will say, that this 8 is divisible by 4. It's a very basic concept. This 8 is divisible by 4. So this is the rule. Okay? एक नॉन डिविजिबल नंबर में से अगर मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक डिविजिबल नंबर मिल जाएगा. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 969 को डिवाइड करके, क्वेश्चन नंबर 18. ओके, वी हैव मार्क देयर ओनली. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 969 को, लेट अस से, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू n. हम मान लेते हैं कि जो नंबर हमें ढूंढना है दैट इज इक्वल टू n. ओके, इट्स सिंपल, आई जस्ट अज्यूम दैट द नंबर इज इक्वल टू n. नाउ व्हाट इट सेज इज दैट इफ दिस n divides this 969, it should leave a remainder 9. So if I apply the division lemma, what I will get? I will get that 969 is equals to n times some q plus 9. Okay? मैं ऐसा लिख सकता हूं बिकॉज n क्या है? मेरा डिवाइजर है. 969 मेरा डिविडेंड है और 9 मेरा रिमाइंडर है, और दिस इज द क्वोशिएंट q. q is any integer. Okay? So from this what I can get is, this will give you 969 में से इस 9 को जब मैं इधर ले जाता हूं, I will get 969 minus 9 is equals to 9q. That is, I get n times q is equals to 960. Okay, n times q is equals to 960. So what I can say is that since this q is an integer, from this what I can get is nq, this q is equals to 960 upon n. 960 upon n. Since q is an integer, n should completely divide 960. What I said is n q is equals to 960 है, मैंने n को नीचे शिफ्ट कर दिया तो q कितना आ गया? 960 अपॉन n. नाउ q क्या है? q कोई फ्रैक्शन नहीं है, q एक इंटीजर है. q क्या है? कोशेंट है. ओके, इस डिवीजन का कोशेंट है तो q क्या है? एक इंटीजर है. अब अगर q को इंटीजर होना है तो इस n को, इस 960 को कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा. दिस 960 शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस n, तभी ये q इंटीजर हो पाएगा. आप सोचिए, अगर मैंने q n को लेटर से 123 रख दिया तो 960 को 123 डिवाइड ही नहीं कर सकता. अगर 960 को 123 डिवाइड नहीं कर सकता तो q एक इंटीजर नहीं आ पाएगा. इट मींस हमारा n जो कि 123 हमने अज्यूम करा वो बिल्कुल गलत है. n कैसा नंबर होना चाहिए? n वह नंबर होना चाहिए जो 960 को डिवाइड कर दे. ओके, 960 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे. तो यहां से हमें समझ में आता है कि हमें n एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 960 को डिवाइड करे. ओके, 960 को कंप्लीट डिवीजन कर दे. लेकिन ऐसे तो बहुत सारे n हो सकते हैं. ओके, ऐसे तो बहुत सारे n पॉसिबल हैं जो 960 को डिवाइड कर सकते हैं. फिर हमें कौन सा n चाहिए? एज द क्वेश्चन सेड, बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम
find the largest number which divides these two numbers. So ultimately I can say that since we can have many values of n which can divide 960, but we need the largest number which divides 960. Why? Because n को बड़े से बड़ा करना है, हमें n की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है उतनी ज्यादा बड़ी चाहिए, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 969 को डिवाइड करके 9 रिमाइंडर दे दे. सो दिस इज द कंसेप्ट कि n को this n, okay, this should be the largest number which can divide, which can completely divide 960. This is the basic concept. Now similarly अगर हम देखते हैं सेकेंड केस में क्या दिया है, 2059, okay, 2059 को डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, 11 रिमाइंडर आना चाहिए. सो अगर मैं इस n से 2059 को डिवाइड करता हूं, what I can write is by again by division lemma I can say that 2059 is equals to n times some q1. q1 is what? It's the quotient, okay, plus or let us say p1 or p, n times p plus remainder is 11, okay. This is the dividend, this is the divisor, this is the remainder, this is the quotient. This is the simple concept, okay. Now from this what I can get is, if I shift this 11 to the LHS, it will give you 2048 is equals to n times p. Now since p is what? P is basically the integer value, it's the quotient, so it's an integer. So I can say that this implies from this equation, if I shift n to the LHS, I will get the value of p as 2048 upon n. क्या वैल्यू मिलेगा हमें, 2048 अपॉन n. सो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट n शुड कंप्लीटली डिवाइड 2048, ओके. n को इस 2048 को कंप्लीटली डिवाइड करना है, क्यों? बिकॉज p क्या है, एक इंटीजर है, p का वैल्यू कोई फ्रैक्शन नहीं है, p एक इंटीजर है. तो इसीलिए हम कहेंगे कि n शुड कंप्लीटली डिवाइड 2048, ओके. n कैसा नंबर होना चाहिए, अगर n 2059 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर देता है तो हम कहेंगे कि n को 2048 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, ओके. लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड. मैंने कहा n एक ऐसा नंबर है जो कि 2048 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है. नाउ तो इसको हम कैसे समझें, अगर n 2059 को डिवाइड करके 11 रिमाइंडर देता है तो ये 11 रिमाइंडर कब दे पाएगा, जब n 2048 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा. कमिंग टू दिस पार्ट, यहां पे हम देख सकते हैं कि n जो है वो 960 को डिवाइड कर रहा है, ओके, कंप्लीट डिवीजन कर रहा है. इसको दूसरे टर्म्स में समझते हैं, अगर n 969 को डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर देता है, दैट मीन्स n 960 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ओके. इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. सो व्हाट आई कैन सी इज, यहां पर n को 2048 को डिवाइड करना है, लेकिन यहां तो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, n की बहुत सारे 2048 के बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं. तो फिर हमें कौन सा फैक्टर लेना है, हमें n को क्या रखना है. अगेन हमने देखा n क्या होना चाहिए, n शुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर. सो इफ n शुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, आई विल से that it should be the largest number which can divide 2048. So we need to, n should be largest number which can
डिवाइड 2048. ओके, n को 2048 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए और सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल होना चाहिए जो कि 2048 को डिवाइड कर सके. ओके, नाउ अब दोनों ही कंडीशंस को मिला के देखते हैं. यहां पर हमें n ऐसा चाहिए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 960 को डिवाइड कर सके, और यहां पर n हमें ऐसा चाहिए या फिर कहें ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 2048 को डिवाइड कर सके. तो अल्टीमेटली हमें n का वैल्यू ऐसा चाहिए जो कि 960 और 2048 दोनों को डिवाइड कर सके. और ऐसा कौन सा वैल्यू चाहिए? ऐसा लार्जेस्ट वैल्यू. सो अल्टीमेटली, so finally we need the largest possible value of n which can divide 960 and 2048. मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि 960 और 2048 दोनों को डिवाइड कर दे. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 960 और 2048 दोनों को डिवाइड करे? मैं कहूंगा HCF ऑफ 960 एंड 2048 इज बेसिकली इक्वल्स टू n. तो मैं कहूंगा n को क्या होना चाहिए? 960 और 2048 का HCF होना चाहिए. तो अल्टीमेटली हमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाना किस पे है? हमें 960 और 2048 के HCF को निकालने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, ना कि 969 और 2059 पे. ओके, सो नाउ कंक्लूजन को देखिए, बड़े ध्यान से सॉल्यूशन को देखिए. क्या करा मैंने सिंपली 969 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2059 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो नंबर बचे हैं 960 और 2048 इन दोनों का HCF ले लिया. ओके, आई सिंपली टुक द HCF ऑफ द टू नंबर्स, ओके, बाय सब्ट्रैक्टिंग द रिमाइंडर. तो अल्टीमेटली क्या देखा हमने कि एक नॉन डिविजिबल नंबर था 969 और 2059, उनके रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करा तो डिविजिबल नंबर्स मिल गए, और जो डिविजिबल नंबर्स मिले उनका हमने HCF ले लिया. ओके, सो HCF लेना निकालते हैं. ओके, इससे पहले नोट कीजिए, बड़े ध्यान से देख लीजिए. आई विल रब दिस पार्ट, मैं इस पार्ट को रब करूंगा और यहां पर हम फिर 960 और 2048 का HCF निकालेंगे. ओके, सो प्लीज नोट दिस. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द HCF ऑफ द टू नंबर्स by applying the division algorithm. By division algorithm, I will write step 1. Okay, what we are doing here, we are calculating the HCF of 960 and 2048. Okay, because this is equals to our n. So डिवाइड, किसको डिवाइड करेंगे? बड़े नंबर को छोटे नंबर से. तो डिवाइड 2048 बाय 960. डिवाइड 2048 बाय 960. सो व्हाट यू विल गेट इज, वी विल परफॉर्म द डिवीजन हियर. दिस इज 2048, दिस इज 960. ओके, सो टू सेव टाइम कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, कैलकुलेशंस मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं. सो दिस इज 960, 2 टाइम्स व्हेन यू डिवाइड इट विल गिव यू 1920. ओके, एंड दिस विल गिव यू रिमाइंडर एज 128. तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड 2048 बाय 960. यहां पर हम लिखेंगे दैट 2048 इज इक्वल्स टू 960 इंटू 2 प्लस 128. Okay, this is the step 1. Then in step 2, what we will do, यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो what we will do, we will divide 960, that is this divisor, इस divisor को हम by 128 से divide करेंगे. So again this is 960 and this is 128. So if you divide this, you will get 128 7 times, it will be 896. Okay,
and when you minus this it will give you 64. So this is the second division. Okay, this is the second division. So what I can say here, I will get that 960 is equals to 128 into 7 plus 64. Okay, this is the remainder, this is the divisor. Now again I can see the remainder is a non-zero value, so again I can perform the division algorithm. So step 3, in step 3 I will divide 128 by 64. This time I will divide 128 by 64. So I will get, so if I divide this 128 by 64, 64 2s are 128, and this will subtracted and will give you 0. So ultimately I will get that 128 is equals to 64 into 2 plus 0. Okay, I will get 128 is equals to 64 into 2 plus 0. So what I can see here, that in this case the remainder is 0. So if remainder is 0, I will say that this divisor is the HCF. Okay, this is the HCF. So ultimately what I can get, I will get HCF of 960 and 2048 is equals to 64. So what does this mean? That n is equals to 64. Okay, n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 64. तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? We will write that 64 is the largest number which divides 969 and leave remainder 9 and divides 2059 to leave remainder 11. Okay, and you can verify this yourself. कैसे verify करेंगे? It's very simple. आप 969 को 64 से डिवाइड करके देख लीजिए, you will find the remainder 9. Okay, similarly 2059 को भी 64 से डिवाइड करके देख लीजिए, you will get the remainder 11. Okay, you will get the remainder 11. So this is the concept that we have learnt in this question. What ultimately we have done, we have simply took the HCF. Okay, हमने शॉर्ट टर्म में, शॉर्टकट में देखा जाए तो क्या करा है? सो कंसेप्ट क्या देखा है हमने? कंसेप्ट इज सिंपल, that n is basically equals to HCF of 969 minus 9 and 2059 minus 11. Okay, अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है. ओके, HCF ऑफ 969 minus 9 and 2059 minus 11, or just apply the division algorithm. You will follow this process and that's it. This what I have explained is the concept. You need not to write this in exam. Exam में आपको ये नहीं लिखना है. This is just for understanding. Okay. So this completes question number 18. A very very interesting question, a new method that we have learned, and lots of, I guess, lots of concept, lots of doubts about the division might be cleared. Okay, division के बारे में जो कुछ doubts थे या कुछ नई चीजें जो आपको सीखनी थी, वह इस क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से सीखी है. It's very very interesting question. Okay, so 19th question will follow this 18th one. So इसे नोट करिए, then we will continue.